Hello everyone, welcome back. Now coming to the topic nervous system of veterinary medicine. First topic is paralysis. So paralysis, it is voluntary motor dysfunction. ये दो टाइप का होता है. फर्स्ट इज सेंट्रल, अनदर इज पेरिफेरल. So central, it is a spastic type of paralysis. In this, upper motor neuron are involved. और ये होगा क्यों? बिकॉज ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फेयर और ड्यू टू द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, या जब सेरेब्रल हेमिस्फेयर एंड स्पाइनल कॉर्ड आर अफेक्टेड. नेक्स्ट वन इज पेरिफेरल. इट इज a flaccid type of paralysis. In this, lower motor neuron are affected, है ना. और उस वाले में सेरेब्रल हेमिस्फेयर स्पाइनल कॉर्ड अफेक्टेड था. इसमें वैसा सिनेरियो हो सकता है, बस आपको याद रखना है कि इन दिस ओनली मोटर न्यूरॉन आर अफेक्टेड, ओनली मोटर, सेंसरी की बात नहीं होगी. सो इट इज़ पेरिफेरल. नाउ कमिंग टू द पैरालिसिस इन एक्सटेंशन. So it affects pyramidal tract. Another is paralysis in flexion. So in flexion, pyramidal tract is affected along with this extra pyramidal tract. Now the next topic is epilepsy. Epilepsy, it is the uncontrolled recurrent fits, very common in dogs and cats. और अगर कैटल में बात करें तो ब्राउन स्विस कैटल, इन ब्राउन स्विस कैटल it is inherited idiopathic epilepsy is found. Epilepsy may be generalized or it may be focal. In generalized, grand mal seizures is found, or it may be petit mal seizures. It is more common in dog and cats, and while petit mal is more common in humans. Focal, it can be psychomotor seizure, or it may be Dixonian seizure. Psychomotor seizure is seen when, or it is seen due to the
temporal lobe affection. The point to be noted here is in generalized epilepsy, there is change in animal behavior, dilation of pupil, more chewing movement, animal fall on one side, frequent urination या frequent excretion. मतलब frequent इतना होगा कि every 1 to 2 मिनट, है ना, ये इतना frequent हो जाएगा. सो जनरलाइज्ड के ये सब साइन एंड सिम्टम्स है जो अपन को ध्यान रखना है. कमिंग टू द पैथोजेनेसिस ऑफ एपिलेप्सी. So in pathogenesis, first is prodromal phase. In this there is mild behavior change. And it lasts for hours to days. The second is aura. It is a strong behavioral change. And the next is fits. It lasts for 30 seconds to 2 minutes. Another is posticus. In this, hunger, thirst is present. Animal feel blind and it lasts for hours. कह सकते हैं कि एनिमल इज डिसओरिएंटेड. नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी. तो ये आपको याद रखना है. डायज़ेपम at 0.5 to 2 mg per kg body weight. Phenobarbital at 15 mg per kg. The next is Primidone, 30 to 50 mg per kg. Now coming to the Primidone, it is most effective for epilepsy. Another drug is phenytoin. एक टर्म आता है इसमें, स्टेटस एपिलेप्टिकस. What is status epilepticus? It is a continuous seizure with no recovery between them. इसी के कारण चूँकि रिकवरी नहीं है, सो इट लीड्स टू कोमा एंड फाइनली डेथ. कोमा भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है इन स्टेटस एपिलेप्टिकस. और ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस इज डायज़ेपम at 2 mg per kg. अगर नर्व्स की बात करें तो मिनेस रिस्पॉन्स, इट इज़ फॉर ऑप्टिक नर्व.
The another one is gag reflex, yeah, swallow reflex. It is for glossopharyngeal nerve. The next one is psychosis. What is psychosis? It is abnormal behavior. Like क्या क्या abnormal behavior होगा? It may be encircling, wind suckling. The next is myelitis. So it is inflammation of spinal cord. Next is polyneuritis. So the polyneuritis, loss of nerve function is there. Causes are strangles, vitamin B1, B12, B6 deficiency. अगर ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो इसके बारे में याद रखना है आपको कि देयर इज अ ब्रीड बॉक्सर. सो in boxers brain tumor is very common. Another affection is gid. So it is seen in sheep और causative agent है Cinerus cerebralis. ये पैरासिटो में पढ़ा ही होगा आपने. The next is coma. So it is a state of unconsciousness. So it is a can be seen in the terminal stage of apathy and depression. In coma there is no response to external stimuli. And the prognosis for coma is guarded. ये आपको याद रखना है. Coming to the ataxia. So what is ataxia? It is incoordination in gait, all signs and symptoms that are present in lameness is found in ataxia. The next is meningitis. So in meningitis there is, अभी हमने respiration में just पढ़ा कि respiration will be of Biot's respiration.
ये बहुत इम्पोर्टेंट था, वहाँ पे हमने पढ़ा था अभी। एंड ऑल्सो काइनी स्टोक्स रेस्पिरेशन, ये दोनों चीज़ तो याद रहना ही चाहिए। अनदर इज इंसेफेलो मलेशिया। सो देर इज इंसेफेलो मलेशिया का मतलब ही होता है सॉफ्टनिंग। सो देर विल बी सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन टिश्यू, और सॉफ्टनिंग होता है ये ड्यू टू डीजनरेशन। द नेक्स्ट इज ल्यूको इंसेफेलो मलेशिया। बस इनका नाम इम्पोर्टेंट है, नाम बस टर्म इम्पोर्टेंट है। इट इज़ सॉफ्टनिंग ऑफ वाइट मैटर। अनदर टर्म विल बी पोलियो इंसेफेलो मलेशिया। तो मलेशिया मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ ग्रे मैटर। बात करते हैं कॉजेज़ की। सो द कॉजेज़ ऑफ इंसेफेलोमलेशिया, ल्यूकोइंसेफेलोमलेशिया, पॉली इंसेफेलोमलेशिया, तीनों का कॉजेज़ ऑफ ऑल द थ्री, इन तीनों के कॉजेज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो कॉजेज़ हैं, इट विल बी डेफिशिएंसी, फर्स्ट द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर, टॉक्सिसिटी ऑफ सल्फर, एंड ड्यू टू द ग्रेन ओवरलोड। ग्रेन ओवरलोड बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। जो आपने मेटाबॉलिक वाला अगर लेक्चर रिवाइज करोगे ना, तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि इन कार्बोहाइड्रेट इंगोर्जमेंट है ना, वहाँ पे इस B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है ना। और ये सब मिला के आपको इंसेफेलोमलेशिया या पॉलीइंसेफेलोमलेशिया या ल्यूको इंसेफेलोमलेशिया सब का रीज़न हो सकता है। ये एक स्पेशल केस है हॉर्सेस का। सो इन हॉर्सेस we just have to remember that in horses the moldy hay poisoning, it leads to leukoencephalomalacia। ये मोल्डी है में होता क्या है? सो इट इज़ फ्यूजेरियम मोलेनिफॉर्म। फ्यूजेरियम मोलेनिफॉर्म, और इससे होता है ल्यूकोइंसेफेलोमलेशिया। सिर्फ इसी से नहीं होता, बाकी चीज़ों से भी होता है, जैसे कि देयर विल बी टॉक्सिसिटी ऑफ मर्करी, सेलेनियम, लेड, आर्गन, इन सब से भी होता है। बट ये इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आता है, मोल्डी हेड पॉइजनिंग से क्या होता है। नेक्स्ट, encephalitis। It is inflammation of the brain। Coming to the listeria, इसका बहुत बड़ा कॉजेज़ है। और लिस्टेरिया में क्या देखने को मिलेगा? देयर विल बी यूनिलेटरल फेशियल पैरालिसिस, ये आपको याद रखना है। इस टाइप का इंसेफ्लाइटिस होगा, देयर विल बी यूनिलेटरल। और दूसरा इंसेफ्लाइटिस की बात करें तो सूडो रेबिस या स्क्रैपी
इनमें होगा हाइपर एस्थीसिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि टेटनस में देखने को मिलता है ना, हाइपर एस्थीसिया। थोड़ा सा भी आवाज़ होगा तो एनिमल विल रिएक्ट मोर टू एनी स्टिमुलस। नेक्स्ट इज हाइड्रोसिफेलस। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ CSF. It is very common in large animal and dogs. It may be hypertensive or it may be normotensive. हाइपरटेंसिव की बात करें तो हाइपरटेंसिव में बी ड्यू टू congenital reasons, it may be due to viral infections, और एक्वायर्ड की बात करें तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, गिड, एब्सेस, इन सब से हाइपरटेंसिव हो जाएगा। अगर नॉर्मोटेंसिव की बात करें तो ड्यू टू BVD, ब्लू टंग, पोलियो वायरस, ये इसमें भी विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉमन है, और थ्रोम्बोसिस, ये सब रीज़न हो सकते हैं। इन डॉग्स में बात करें तो पूडल, चिहुआहुआ and all brachycephalic breeds are prone to hydrocephalus condition. Now coming to the कैटल में बात करें तो जर्सी, एयरशायर, एंड शॉर्ट हॉर्न, है ना, ये मोर प्रोन टू हाइड्रोसिफेलस, more prone for hydrocephalus. Now coming to the tests. Test for CNS disorder सारे इम्पोर्टेंट हैं, है ना, बस नाम इम्पोर्टेंट है, सबका नाम एक बार बस आप जान जाओ क्या होता है, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है क्रैश कोर्स में। फर्स्ट इज़ हेमी हॉपिंग या हेमी स्टैंडिंग, another is wheelbarrowing, another is paniculus reflex, another is Babinski reflex, another is writing reaction. ये पांचों याद रखना आपको। कमिंग टू द CSF कैन बी रेड ब्राउन इन कलर्स। किस कंडीशन में? इन ट्रॉमा, हेमरेज, ठीक है। कमिंग टू द, ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, और ये ग्रीन कलर कब होगा? ड्यूरिंग सुपरेशन एंड कोआगुलेशन। एक
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है कि इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस chlorine content of CSF will increase. Now coming to the site for CSF collection. यहाँ पे अपन लिख लेते हैं स्पीसीज, जैसे कि कैटल का साइट है लंबर, हॉर्स सेम लंबर, डॉग्स एंड कैट्स दोनों में है सिस्टर्ना मैग्ना। पिग एंड शीप दोनों में है लंबो सैक्रल स्पेस। नाउ कुछ ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ ड्रग्स हैं जो कि नर्वस के जितने भी डिजीज़ेज़ हैं, है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। फर्स्ट जो ड्रग है, सबसे फर्स्ट, वो है डायूरेटिक्स। जब आप मेडिसिन की किताब देखोगे ना, तो वहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ नर्वस डिसऑर्डर में जो चीज़ें बताई गई हैं, बिल्कुल एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन सा ड्रग नर्वस सिस्टम में फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। तो फर्स्ट इज़ डायूरेटिक का काम सबको पता है कि जो सेरेब्रल एडिमा होगा इसको रिड्यूस करेगा, और जो डायूरेटिक्स अपन यूज़ करते हैं दैट इज़ मैनिटॉल। सो इट डिक्रीज, चूँकि एडिमा कम करेगा, सो इट विल डिक्रीज द इंट्राक्रैनियल प्रेशर। फर्स्ट काम यही करना होता है। और जो मैनिटॉल हम यूज़ करते हैं दैट इज़ 20%, और ये 20% जो मैनिटॉल है इट विल बी गिवन एज 0.5 to 2 ग्राम पर kg बॉडी वेट, आधा से 2। नेक्स्ट, सेकेंड, CNS stimulant. So there is Bemigride, there is Coramine, and there is Doxapram. आपने पढ़ा होगा उस कि नहीं, ये एनालेप्टिक्स होते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होते हैं, बट इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज अ CNS स्टिमुलेंट। अगर कोई हाइपरेस्थीसिया का पेशेंट है ना, तो ऐसे केसेस में CNS डिप्रेसेंट भी यूज़ होता है, या हाइपर एक्टिव है तो उसमें तो ऑल नारकोटिक्स, जितने भी नारकोटिक्स वाले ड्रग हैं वो यूज हो जाएगा फॉर द CNS डिप्रेसेंट। Now coming to the musculoskeletal system. First is muscle disorder. Muscle disorders may be due to infectious cause, or may be due to non-infectious cause. इन्फेक्शियस की बात करते हैं अभी अपन, तो इन्फेक्शियस कॉजेस लाइक BQ, ब्लैक वाटर, ट्रिकनेला। एंड नॉन इन्फेक्शियस में बात करते हैं तो
इट कैन बी एक्वायर्ड और इट कैन बी इनहेरिटेड। तो इनमें बहुत सारे हैं, जैसे इनहेरिटेड में है डोनर काउ, इसमें है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, और है मसल या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हाइपर कैल्सेमिक, मायोपैथी, और है रैब्डोमायोमा। इनमें से कोई भी कॉजेज हो सकता है फॉर द मस्कुलर डिसऑर्डर्स। बहुत छोटा सा है ये। नाउ कमिंग टू द बोन डिसऑर्डर्स। बोन डिसऑर्डर्स में जो डिजीज़ है, फर्स्ट इज ऑस्टियोमाइलाइटिस। So what is osteomyelitis? It is inflammation of osseous as well as myelite tissue of bone. Cattle की बात करें, so in cattle osteomyelitis may be due to the actinomycosis. In pigs, it may be due to the brucella or atopic rhinitis. Important है ये एक्टिनोमाइकोसिस, ब्रूसेला इनमें, है ना। In dog and cat, it is due to staphylococcus infection. The next condition is osteodystrophy. So what is osteodystrophy? It is failure of normal bone development. अगर लैम्ब की बात करें तो in lambs it is due to the copper deficiency, and in foal and lamb ये हो सकता है due to lead पॉइजनिंग। तो लैम्ब में ये कॉपर के कमी से भी हो सकता है, लेड के पॉइजनिंग से भी हो सकता है। फूल में जनरली लेड के पॉइजनिंग से होता है। एक और टाइप है ऑस्टियोडिस्ट्रोफी में, इनहेरिटेड टाइप वाला। सो द इनहेरिटेड ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, इनहेरिटेड में जो होता है, जो अगर ये काव्स की बात करें तो काव्स में जो इनहेरिट होता है इट इज़ कॉन्ड्रोडिस्ट्रॉफी। और अगर बात करें हॉर्सेस की, तो हॉर्सेस में जो इनहेरिटेड वाला है दैट इज़ ऑस्टियोफाइब्रोसा सिस्टिका। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट, इस पूरे बोन वाले में सबसे इम्पॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन आएगा सबसे पहले वहीं से आएगा, दैट इज़ ऑस्टियोडिस्ट्रोफी फाइब्रोसा। सो इन ऑस्टियोडिस्ट्रोफी ये आता ही एक तो स्टेटमेंट आएगा ही आएगा ऑस्टियोडिस्ट्रोफी फाइब्रोसा से। इसका दूसरा नाम है बिग हेड डिजीज़, इसका और नाम है ब्रांड डिजीज़, इसका और है सेकेंडरी पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, होता क्यों है? ड्यू टू द इंक्रीज इन फॉस्फोरस एंड डिक्रीज इन कैल्शियम लेवल इन ब्लड। तो ये आपको याद रखना है।
अब बात करते हैं इन केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, एक स्टेटमेंट है बस, इन केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस के क्वेश्चन जो आएंगे ना, तो आपको हमेशा लगेगा कि ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम कम हो जाएगा और ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इन केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल इन ब्लड इज नॉर्मल। तो नॉर्मल रखने के लिए ही तो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है ना, पोरस हो गया है। तो ब्लड में नॉर्मल ब्लड प्रोफाइल से आप ऑस्टियोपोरोसिस पता नहीं कर सकते। यू विल हैव टू रिलाई ऑन द एक्सरेज। ऑस्टियोमलेशिया, हाँ एंजाइम वगैरह की बात कर सकते हैं ना, अल्कलाइन फॉस्फेटेज की बात कर सकते हैं इसमें। मैं बस कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल की बात कर रहा हूँ, इससे ऑस्टियोपोरोसिस नहीं पता चल पाएगा। कमिंग टू द ऑस्टियोमलेशिया, इट इज सॉफ्टनिंग ऑफ मैच्योर्ड बोन ड्यू टू एक्सेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। ऑस्टियोपोरोसिस का अगला स्टेप है ना, वो कंडीशन वर्स होते होते हो जाएगी ऑस्टियोमलेशिया, ज़्यादा हो जाएगा बोन रिजॉर्प्शन, देन देयर विल बी सॉफ्टनिंग ऑफ मैच्योर्ड बोन। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है मस्कुलोस्केलेटल और नर्वस सिस्टम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, हैव अ नाइस डे।